अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ ड्रामा। पिछले भाग में हमने देखा कि नाटक क्या होता है, नाटक की व्याख्या क्या है, और इस पाठ में हमें क्या समझना है। चलो अब देखते हैं अंग्रेजी नाटक का इतिहास संक्षेप में। इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश ड्रामा थिएटर, अंग्रेजी नाटक थिएटर का परिचय। ड्रामा हैज इट्स ओरिजिन्स इन फोक थिएटर। We therefore cannot consider drama merely as a part of literature. नाटक की उत्पत्ति लोकमंच, लोक कला में होती है। हम इसलिए नाटक को केवल साहित्य का एक हिस्सा नहीं मान सकते। Words are the medium of literature is an art, but drama is a multiple art using words, scenic effects, music, and gestures of the actors and the organizing talents of a producer. The dramatist must have players, a stage and an audience. शब्द साहित्य की कला के रूप में माध्यम होते हैं, लेकिन नाटक एक बहुकला कला है जिसमें शब्द, दृश्य प्रभाव, संगीत और अभिनेताओं के इशारों का उपयोग होता है, साथ ही एक प्रोड्यूसर की आयोजन क्षमताओं का भी। नाटककार के पास अभिनेता, मंच और एक दर्शकों का समूह होना चाहिए। The beginnings of drama in England are obscure. There is evidence to believe that when the Romans were in England they established vast amphitheatres for the production of plays, but when the Romans departed their theatre departed with them. नाटक की शुरुआत इंग्लैंड में कब हुई यह अस्पष्ट है। यकीन करने के लिए प्रमाण है कि जब रोमन इंग्लैंड में थे तो वे बड़े बड़े बहुतरफा मंच, एम्फीथिएटर्स सभी ओर से दिखने वाले स्थापित करते थे ताकि नाटकों का निर्माण हो सके, लेकिन जब रोमन चले गए तो उनके साथ ही उनका थिएटर, नाट्यकला भी चला गया। Then there were minstrels. People enjoyed their performances. Gradually by the 10th century the ritual of the plays that itself had something dramatic in it, got extended into the rudiments of a play. फिर वहाँ गवैये, गायक थे। लोग उनके प्रस्तुतियों का आनंद लेते थे। धीरे धीरे 1वीं सदी तक ऐसे नाटकों की रीत शुरू हुई जो खुद में कुछ नाटकीय थी, खुद को एक नाटक के बुनियादी तत्वों में विस्तारित हो गई। Between the 13th and the 14th century drama started having themes which were separated from religion. The words themselves were spoken in English, a longer dramatic script came into use, and they were called miracle plays. 13वीं और 14वीं सदी के बीच नाटक धार्मिकता से अलग होने लगे। शब्द खुद अंग्रेजी में कहे जाते थे, एक लंबी नाटकीय पटकथा का प्रयोग होने लगा और उन्हें चमत्कृति नाट्य, मिरेकल नाटक कहा गया। Later, these religious dramas were the morality plays in which characters were abstract vices and virtues. These were allegories. बाद में ये धार्मिक नाटक नैतिकता बताने वाले नाटक थे जिनमें पात्र अभिसूचनात्मक दोष और गुण थे। ये रूपक कथाएं थीं। 1. Elizabethan and Restoration drama theater, Elizabethan और Restoration नाटक theater. These secular morality plays have direct links with Elizabethan plays. The Renaissance imposed a learned tradition, classical in depth with themes of education, general moral problems and secular politics. ये धर्मनिष्ठ नैतिकता नाटक सीधे एलिज़ाबेथन नाटकों से संबंधित है। पुनर्जागृति, पुनरुत्थान, रेनेसांस ने एक शिक्षित परंपरा को थोपा, जिसमें शिक्षा, सामान्य नैतिक समस्याएं और धर्मनिरपेक्ष राजनीति के विषय शामिल थे। The plays had nothing to do with religion. There were examples of both comedy and tragedy. Thomas Kidd, Christopher Marlowe and William Shakespeare are the prime dramatists of this era. It was Kidd who discovered how easily blank verse might be converted into a useful theatrical medium which Shakespeare used brilliantly in all his plays. नाटकों का धर्म से कोई संबंध नहीं था। हास्य और शोक दोनों के उदाहरण थे। थॉमस किड, क्रिस्टोफर मार्लो और विलियम शेक्सपियर इस युग के प्रमुख नाटककार थे। किड ने खोजा कि किस प्रकार मुक्त छंद, खाली छंद, उपयुक्त रूप में एक महत्वपूर्ण नाटकीय माध्यम में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे शेक्सपियर ने अपने सभी नाटकों में उत्कृष्ट रूप से प्रयोग किया। Tragedy developed in the hands of Kidd and Marlowe. Comedy had also proceeded beyond rustic humor. But by the 90s of the 16th century, the theatre in England was fully established, but complicated conditions governed the activities of the dramatist. शोकांतिकाकार, ट्रेजेडियस्ट किड और मार्लो के हाथों विकसित हुआ। हास्य भी ग्रामीण हास्य से आगे बढ़ गया था। लेकिन 16वीं सदी के 49 तक इंग्लैंड के थिएटर का संपूर्ण निर्माण हो गया था, लेकिन नाटककारों की गतिविधियों को जटिल स्थितियां निर्देशित करती थी। The public theatre of the 16th century differed in many important ways from the modern theatre. It was open to sky, without artificial lighting. The stage was a raised platform with the recess at the back supported by pillars.
There was no curtain and the main platform could be surrounded on three sides by the audience. Around the theater there were galleries. 16वीं सदी के सार्वजनिक थिएटर आधुनिक थिएटर से कई महत्वपूर्ण तरीकों से अलग थे। वह ऊपर से खुला था, बिना कृत्रिम प्रकाश का। मंच एक उच्चतम दर्जे का था जिसके पीछे एक कोठरिका खाली जगह थी जिसे स्तंभों द्वारा समर्थित किया गया था। वहां पर्दा नहीं था और मुख्य मंच को तीनों ओर से दर्शकों द्वारा घिरा जा सकता था। थिएटर के चारों ओर गैलरियां गलियारे थीं। In the 17th century the enclosed theatre gained importance. There was increasing attention to scenic devices. Theatre became private. 17वीं सदी में आवृत थिएटर में महत्व प्राप्त हुआ। थिएटर ने निजी बन जाने के साथ साथ दृश्य उपकरणों को ध्यान से बढ़ावा दिया। Shakespearean era came into existence in the 16th century to the public theatre. He wrote for the contemporary theatre, manipulating the Elizabethan stage with great resource and invention. But the genius of Shakespeare should not allow the rest of the drama of his age to be obscured. शेक्सपियर का काल 16वीं सदी में सार्वजनिक थिएटर में आरंभ हुआ। उन्होंने अपने समकालिक थिएटर के लिए लिखा, अपने बड़े संसाधन और आविष्कार के साथ एलिज़ाबेथन मंच में बदलाव किया। लेकिन शेक्सपियर की प्रतिभा से बाकी उस काल के नाटक को अंधकार में नहीं डाल देना चाहिए। Contemporary to him was Ben Jonson, a classicist, a moralist and a reformer of drama. In comedy, Jonson's genius is found at its best and his influence was considerable. The Restoration dramatists leaned strongly upon him. उनके समकालिक थे बेन जॉनसन, एक शास्त्रवादी, एक नैतिकतावादी और नाटक के सुधारक। हास्य में जॉनसन की प्रतिभा सबसे बेहतरीन है और उनका प्रभाव महत्वपूर्ण था। पुनर्स्थापन रेस्टोरेशन नाटककारों ने उन पर मजबूती से झुकाव दिखाया। The further lesson will be in the part 3. Thank you.